dream begins with a kick, or dusty fields, or polished turfs. Children across the country lace up their shoes and chase the dreams of becoming their favorite sports star. But what lies behind these scenes of these dreams is rarely unspoken. There lies contracts, rights, and liabilities. और भागेगा क्या? अरे ये क्या हो गया इसको? कितने बार कहा इसको फुटबॉल खेलने मत भेजा करो, कितने बार बोले मत जाया कर लेंगे। अरे स्टेट प्लेयर है हमारा, तुम चिंता मत करो। और ये जिसको चोट लगी है उसका क्या? चोट लगी है तो ठीक हो जाएगा कुछ दिन में, क्या बात हो गई? कैसे होगा? डॉक्टर है ना यहाँ पे, कहाँ है? आ रहे हैं अभी डॉक्टर, सब ठीक कर देंगे इसके कब लिए। तक आएंगे? तुमको समझ नहीं आता मेरा बच्चा। लो आ गए डॉक्टर। देखिए चिंता की कोई बात नहीं है, ऐसे ठीक तो हो जाएंगे। पर आप इसका देख लीजिए, ये देखिए जो बिल बन रहा है ये आप देख लीजिए। और ये मुजिंदर स्पोर्ट्स एकेडमी है ना, हाँ, हाँ। तो केस आते रहते हैं। अब आप देखिए, क्या? अब आप देखिए। हे बड़ा भगवान, अजीब डॉक्टर है। देखो ये बिल कौन पे करेगा इतना? कहाँ से आएंगे इतने पैसे? अरे तुम चिंता मत करो, मुजिंदर फुटबॉल एकेडमी का सबसे होनहार लड़का है ये। तीन स्पोर्ट्स चैंपियनशिप जीती है इसने और तीनों में मैन ऑफ द मैच रहा है। वो जरूर इसका पेमेंट करेंगे, वो जरूर हमारी मदद आपको करेंगे। लगता है ऐसा होगा? बिल्कुल। कुछ नहीं मिलेगा सक्सेना जी, कुछ नहीं मिलेगा। ऐसे बहुत होते हैं हमारे यहाँ पे। क्या मतलब कुछ नहीं मिलेगा? क्या कहना चाह रहे हो तुम? देखिए कानून का मामला है, हाथ में मत दीजिए, इतना गरमाइए नहीं। आपने ये आपको अरे देखा यार, नहीं लग रहा है ये यार, ये कॉन्ट्रैक्ट? कैसा लॉयर है? सीधा तो पकड़ो इसको। सीधा पकड़ लेंगे। आप इधर देखिए, आपकी साइन सीधी है कि नहीं, आप वो ध्यान दीजिए। देखिए ये साइन आपकी है, हाँ। तो आपने ये क्लॉज पढ़ा था, पढ़ना अरे लिखना आता पढ़ना है क्या, आपको? हमने तो मुजिंदर जी का भरोसा किया था। भरोसा नहीं, आप इधर क्लॉज देखिए। क्लॉज में लिखा है कि कोई भी इंजरी के केस में क्लब कोई पैसे नहीं देगा, नो रिन्यूमरेशन। हे माँ, माता जी, हाँ, चलिए। अरे यार जबान की कोई कीमत नहीं होती, क्या कर रहे हो तुम लोग? नहीं होती है। अरे मुजिंदर, वकील। मुजिंदर। इजी हॉस्पिटल में अगला केस है, चलिए अभी इतना समय नहीं दे सकते। चलिए The story you witnessed might be dramatized, but it is not unreal, and sadly not even uncommon. In our fieldwork, we found Mantra Saxena, who is a football player and had to suffer a hip injury. His father Rahul Saxena told us how much pain their family had to endure, even financially, emotionally, and mentally. The clause in the AIF contract clearly states that the academy shall not be responsible for any injury and any medical expenses. This clause leaves the liability of the academy, but leaves the parents and the player with so much pain that they won't even be able to endure. Now let's see what Mr. Rahul Saxena has to say about his situation. Good evening. Today we are at one of the parents' home of a child who is associated with BSFA Football Academy. His name is Mantra Saxena, and the parent here that we are trying to have a conversation with is Rahul Saxena. Over to Rahul Saxena. Hello, sir. Good evening. So myself, Mr. Rahul Saxena, I'm a businessman, and my son was admitted in this football academy, BSFA, and he joined the academy. And before joining, they made me sign on a paper which was one of their contracts. So before joining the academy, we need to sign, as a parent, we need to sign on that document. And as I was trying to read the clauses of document, but they were not allowing me, and they just said, "Okay, this is a formality, you need to sign it, this is a procedure." So I signed on the document, and my son was admitted in this academy, and he was playing a tournament on behalf of this academy. And one fine day, while playing football, he succumbed to some very serious injury on his thighs, and he was admitted in the hospital. And the doctor told me that the injury was very serious, and he had to be on the bed for 4 to 5 months. So his education was going on, and the expenses were also very high. So I went to the academy and told the officers that you need to compensate me for this, because he was representing your academy as a player. So whatever injury is happening, so you need to address those injuries and you need to compensate him. But they bluntly refused to help us. They just said that you sign on this paper which clearly says that any injury, if it is done, it is there, then it is the player who has to bear the expenses
and you cannot, and the academy is not responsible for any of the injuries of the players. So I was very much shocked to hear this thing, that such was the contract which was So why signed. didn't you try to approach the court or any lawyer? Or I consulted a lawyer, and I told him that such and such thing has happened, but the lawyer told me that you have already signed on the paper, and it is clearly written that no, the academy won't be responsible for any of the injuries. And secondly, there was second clause that if any dispute arises regarding any injury, then you cannot go in the court. So you have to complain to the All India Football Federation, and there the address will be solved. But they have strictly said that no such criminal procedure, no such court procedure will be adopted in these kind of matters. So they had signed on such documents, which I feel that it's not very healthy practice on behalf of this academy. Thank you everyone. So this was Rahul Saxena, dad of Mantra Saxena. For most young athletes, tournaments are more than just matches. They are opportunities to prove themselves. But beyond the goals and glory lies hidden costs, expenses that not every contract accounts for fairly. सर हम टूर्नामेंट जीत के आए हैं। अभी जो आंध्र प्रदेश का लेटेस्ट टूर्नामेंट हुआ था उसमें हम जीत के आए हैं। देखिए बढ़िया यार, अब तो नाम रोशन हो गया अपने एकेडमी का। गुड यार। सर पर हमको आने जाने का थोड़ा 12,000 का खर्चा हुआ है, थोड़ा हो सके तो रिम्बर्समेंट करवा दो। हाँ, क्या बात करते हो भाई। ये इसका बिल है सर, देख लीजिए एक बार आप। ठीक है, इसको तो हम रखते हैं। लड़कों ने बहुत मेहनत की है सर, सबने। अभी तुम ये रख लो सर पर ये तो 500 ही है। अभी दे देंगे अगर हो गया तो। अभी इसमें मजे करो। गुड गुड, ठीक है ना बेटा। अब आपको दी सिचुएशन देख के लगा होगा जो इस भाई के साथ हुआ बहुत गलत है, बट लेट्स गेट टू द लीगल एस्पेक्ट ऑफ इट। एक्चुअली इन्होंने एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था जहां पे क्लियरली स्टेटेड था कि अगर प्लेयर कोई भी कहीं भी जाता है, कोई भी एक्सपेंसेस इनकर करता है, तो वो जो अमाउंट जो पे होगा इट विल बी अ रीजनेबल अमाउंट दैट विल बी डिसाइडेड बाय the sports academy, and this poor fellow will have no say in it. So this is what happens when you don't read the terms of the contracts or you are not aware of what you're getting into, and this is how a lot of time people get into contracts that they don't want to be a part of actually. आज हम एक और फुटबॉल प्लेयर मोहित शाह के घर आए हैं। उनकी मम्मी ममता बेन शाह हमसे आज बात करेंगी और हम आपको पूरे प्रोसेस के थ्रू लेके जाएंगे कि कैसे कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे फॉर्म हुआ बिटवीन द क्लब एंड द पेरेंट ऑफ द ऑफर एक्सेप्टेंस एंड कंसिडरेशन पार्ट, एंड वो जो था, जो भी क्लॉजेस उन्होंने साइन की, उसके क्या रेसिप्रोकेशंस और क्या कंसिडरेशंस बाद में आके हमें देखने को मिलता है इस कॉन्ट्रैक्ट में। तो वी हैव विद अस ममता बेन शाह। हाय, आई एम ममता शाह और मुझे ये फुटबॉल कॉन्ट्रैक्ट के लिए मेरा बेटा लेके आया था फॉर्म। तो उसने बोला था कि जस्ट फॉर्मेलिटी के लिए फॉर्म साइन करना है, तो मैंने फॉर्मेलिटी के लिए साइन कर लिया, पर मैंने उसके डूज एंड डोंट्स पढ़े नहीं थे। तो उसमें क्या कॉन्ट्रैक्ट में है और वो सब मुझे पता नहीं है। पर मेरा बेटा अच्छा खेलता है, तो उसके लिए वो बाहर खेलने गया था। तो बाहर खेलने के लिए उसको गया था तो 12,000 की एक्सपेंस आई थी। पर जब मैंने आके रीएम्बर्समेंट करवाई तो उन्होंने मुझे 2,000 पे किया और फिर उन्होंने बताया कि हमने क्लॉज में लिखा है कि रिजनेबल रीएम्बर्समेंट मिलेगा, तो वो मुझे पता नहीं था। तो ये सब इश्यू रहता है इसमें। तो वो आप जब उन्होंने अप्रोच किया तो उन्होंने क्या कहा कि बस इतना ही आपको दे सकता है, तो कोई अमाउंट पहले से मेंशन था या उन्होंने बस बोला था कि हमारे हिसाब से हम देंगे? हाँ, मीन्स उन्होंने पहले बोला था कि रीजनेबल रिएम्बर्समेंट होगा, हाँ। पर मुझे लगा था कि 40-60% होना चाहिए, हाँ, पर कम हाँ, हुआ। कम से कम।
ये खेलेंगे खेलेंगे आ जाते हैं पता नहीं कहाँ से। अरे हाँ यार मेरे को फुटबॉल नहीं खेलना है। क्या बात हो गई? 1 महीने पहले तो रोता रहता था अकेडमी ज्वाइन करो अकेडमी अब ज्वाइन। मेरे से नहीं होगा यार। क्या हो गया? मेरे को बहुत परेशान करता है यार ये यक्ष और फिनिक्स बहुत परेशान करता है। ये क्यों परेशान करते हैं तुम्हें? कौन है ये लोग? तुम्हारे साथ खेलते हैं क्या? हाँ, हमारे साथ खेलते हैं। तुम्हें क्यों परेशान करते हैं? ये क्या बात हो गई? पता नहीं यार, तो वहाँ पे कोई बोलता नहीं है कुछ तुम्हें परेशान करते हो? कुछ नहीं बोलता। तो इतनी सी बात के लिए खेलना ही छोड़ दोगे? यार मेरे से नहीं हो पाएगा यार, अब बहुत हो गया। अच्छा चलो मैं मुजिंदर जी से बात करता हूँ हाँ यार। और फिर बताता हूँ तुम्हें। ऐसे तो सीधा छोड़ना तो अच्छी बात नहीं है। पहले मैं मुजिंदर जी से बात करता हूँ क्या इशू है, फिर बात कर जल्दी करिए। ठीक है। मेरा एकेडमी देखते हैं। अरे मुजिंदर जी आइए आइए। क्या बात कैसे है? हो? बस बढ़िया। ये क्या लाए? लाए थे आपके लिए स्वीट्स। अच्छा मिठाई लाए हो? क्या क्या बात क्या बात। तो हमारा जो बच्चा है बता रहा था कि अकेडमी में उसको अच्छा नहीं लग रहा है। अब कोई 2 बच्चे हैं, यक्ष और एक और कोई तो नाम बताया था। ये दोनों बच्चे मिलके बहुत परेशान करते हैं उसको और माहौल भी कह रहा था ठीक सा नहीं है। तो कह रहा था अब तो उसको नहीं खेलना है। अब तो इसी बारे में बात करनी थी कि ऐसा क्या होगा। 1 महीना पहले तो बच्चा रो रहा था अकेडमी जाना है। अब ये सब हो गया। अरे बच्चे हैं, ऐसा होता है। आप भेज दो उनको, मैं खिला दूंगा अच्छे से, नाम रोशन कर देगा वो। अच्छा अच्छा अच्छा। तो नहीं छुड़ाना चाहिए मतलब? नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, वो अच्छा खेल रहा है, अच्छा खेलने दो उसको, भेजो। अच्छा अच्छा ठीक है। क्या यार ये समझ ही नहीं आती इनको। जब बोल रहा हूँ नहीं खेलना है और पता नहीं है कोच ने भी क्या पढ़ा दिया पट्टी। मान ही नहीं रहे, समझ ही नहीं आता इनको कोई बात। ना बोलो फिर भी नहीं मानते। तो परेशान हो गया हूँ यार इन सब चीजों से। हमने जो फील्ड वर्क किया उसके बाद वन ऑफ द मोस्ट प्रेवलेंट चीजें जो हमें दिखी इन माइनर कॉन्ट्रैक्ट्स when it comes to sports is are cases of depression and children not being able to speak up when there was any issue in the sporting facility that they were involved in. वो लोग जाते हैं, वो लोग वहाँ खेलते हैं, बट जो वहाँ पे उनका से इतना कम होना क्योंकि वो आर नॉट पार्टी टू द एग्रीमेंट। उनके पेरेंट्स ने साइन किए होते हैं कॉन्ट्रैक्ट्स और कोचेस अपना डायरेक्ट रिलेशन उन पेरेंट्स के साथ रखते हैं और बच्चों का कोई से नहीं हो पाता। इसलिए बहुत सारे इंडिविजुअल्स जिन्होंने हमें इंटरव्यू किया वो लोग बहुत ही ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड थे और इनफैक्ट वो उस गेम को, जिस गेम को वो इतना प्यार करते थे, उसको खेलना शुरू करते हैं थ्रू द प्रोसीजर, थ्रू द लीगल प्रोसीजर, थ्रू द एवरी प्रोसीजर, वो और ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो गए और वो गेम को हेट करने लगे। Sports is meant to build character and not break it. A minor's contract that ignores the mental health is not just legally weak, it is morally flawed. It's time we redefine what consent, choice and success really mean. Now let's meet Kunal Sharma, who is a 16-year-old player and is suffering these problems in real life. Hello everyone, I'm here with Kunal, who is a ex-football player. So Kunal, can I ask you a few questions? Yeah, So when you were playing football, did you ever feel like you didn't want to keep playing, you were pushing yourself too hard, and what was the reason that you kept playing? It has been many times with me because means continuously I have to play matches because coach used to force me to play means almost 2-3 days continue. I have to means I was not getting time to rest, and also the parents had invested in my academic, so that was also both pressure. I used to face both the pressure from both the sides. So did you ever feel that your mental health or emotional state was ever considered by your coach and your family? No, means कोच को तो कभी फ़र्क नहीं पड़ता था मेरे मेंटल हेल्थ से। तुम्हें खेलना है बस, उनका एक रात में मैसेज आता था कि कल सुबह मैच है, एंड ये डेली का प्रोसेस था, वीक में चली जाती थी। ऑल्सो क्या आपने कभी बताने की कोशिश करी कि आपको ब्रेक चाहिए, आपको खेलने का मन नहीं है, और उन्होंने कैसा जवाब दिया? मैंने तो बहुत बार बोला कि मुझे ब्रेक चाहिए बिकॉज आई वॉज फुली टायर्ड, बट उनका एक ही क्वेश्चन था कि अगर मैच नहीं खेलोगे तो फिर दे विल डिवार्ड और मेनी इशू। एंड जब आपने अपना कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था तब आपको क्या कभी फीलिंग आई कि आप स्ट्रैप्ड हो, कि आप कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन हो कि आपको करना ही पड़ेगा, कि आप ना नहीं बोल सकते? एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ये चीज़ नहीं था, बट जब कॉन्ट्रैक्ट साइन हो गई तो फिर एक फोर्सफुल लग रहा था कि मतलब वो कुछ टर्म एंड कंडीशन लगा रहे थे कि तुमने इस चीज़ पे साइन किया तो तुम्हें ये चीज़ करना पड़ेगा।
तो वो कॉन्ट्रैक्ट प्रॉपरली नहीं पढ़ने की वजह से ये इशू आ रहा था। ओके, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। थैंक यू।